हेलो हाय वेलकम बैक टू लॉ की दुनिया। आज का टॉपिक है कॉन्सिलेशन। उससे पहले हम लोग देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या अभी तक कर चुका है। अभी तक हम लोगों ने देख चुका है व्हाट इज़ ईडीआर, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीआर, व्हाट इज़ मीडिएशन, टाइप ऑफ डिस्प्यूट रिजॉल्व बाय मीडिएशन, स्टेजेस ऑफ मीडिएशन, हु कैन बी ए मीडिएटर, हु आर नॉट क्वालिफाइड टू बी ए मीडिएटर, क्वालिटीज ऑफ मीडिएटर, disadvantage of mediation, what is arbitration, advantage of arbitration, qualification of arbitration, duties and liabilities of arbitration, ground for setting aside an award set by an arbitrator, time limit for making an award by an arbitrator। आज का टॉपिक है कंसोलेशन। चलो देखते हैं कंसोलेशन क्या होता है। मीनिंग ऑफ कंसोलेशन: कंसोलेशन is a procedure through which the conciliator informally tries to settle the dispute between the parties and bring them to an agreement. The success of this proceeding depend upon the ability of conciliator। चलो देखते हैं क्या होता है। सपोज दिस इज एन ए पर्सन ए, इसका एक डिस्प्यूट हुआ बी के साथ। इन दोनों ने मिलके एक कंसिलेटर लिया, एक इंडिविजुअल जो इन दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। इस इंडिविजुअल का क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ है वो देखते हैं पहले। द कंसिलेटर डज द फॉलोइंग: लोअर द टेंशन, नंबर 2 improve the communication, number 3 interpret the issues, number 4 provide technical issues, number 5 explore the potential solution। Now we will see appointment of conciliator। एक conciliator appoint कैसे होता है? This is section 64। As per as section 64 of Arbitration and Conciliation Act 1996, here are the rules for appointment of a conciliator। Number 1, there can be any number of conciliator, be it 1, 2, 3, depending upon the wish of the parties। Number 2, in the case of one conciliation, the party may agree on the name of a sole conciliator। Number 3, in case of two conciliators, each party may appoint one conciliator। Number 4, in case of three conciliators, each party may appoint one conciliator। One party may agree on third conciliator to act as a preceding conciliator। यहाँ पे क्या बताया वो देखते हैं। सपोज ए का डिस्प्यूट हुआ बी के साथ, ये दोनों मिलके एक कंसिलेटर ले सकते हैं या फिर ये एक और एक तीसरा वाला जो इन लोग को जज करेगा। मतलब एक कंसिलेटर हो सकता है, दो कंसिलेटर हो सकते हैं या फिर तीन कंसिलेटर हो सकते हैं। इसके बाद वाला टॉपिक है सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट टू कंसिलेटर। ये जो दो पार्टी है ए और बी, इनका डिस्प्यूट हुआ है वो कंसिलेटर को कैसे बताएंगे। द कंसिलेटर आस्क्स बोथ द पार्टीज टू सबमिट a written statement describing the nature and point of dispute। Both the parties shall send a copy of the written statement to each other। Parties also asked to submit their facts of the cases and ground on which they have filed the case along with the supporting document। मतलब इन लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ है, they will write in writings and give a copy to the conciliator। इसके बाद वाला टॉपिक है कंडक्ट ऑफ कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग, सेक्शन 69 से 67। द कंसिलेटर में इन्वाइट बोथ द पार्टीज टू मीट देम ईदर टुगेदर और सेपरेटली। He has the freedom to conduct the proceeding in the manner as he may find appropriate। This is A, इसका dispute हुआ with B। They have appointed a conciliator C। तो ये कंसिलेटर जो है इन दोनों को एक साथ में बुला सकता है या फिर इंडिविजुअली, पहले इसको बुलाएगा फिर इसको बुलाएगा। इट डिपेंड अपॉन द कंसिलेटर कि वो कैसे प्रोसीडिंग कंटिन्यू करना चाहता है। नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। जो कंसिलेटर डिसाइड हुआ वो उन लोगों का डिस्प्यूट कैसे सॉल्व करेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73 ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट 1996, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट टेक प्लेस थ्रू सर्टेन स्टेप मेंशन बिलो। नंबर 1, फॉर्मुलेट द टर्म ऑफ ए पॉसिबल सेटलमेंट। मतलब कंसिलेटर पहले पूछेगा कि ए को क्या चाहिए, बी को क्या चाहिए। नंबर 2, द कंसिलेटर में reformulate the condition for a of a prospective settlement after receiving the party's observation। Number 3, when the parties reach an agreement on a settlement, they may draw up and sign a written statement। Number 4, the settlement agreed shall be final and binding on the parties।
Number 5. The conciliator shall authenticate the settlement agreed. The settlement agreement shall have the same effect as an arbitral award. Number 6. Confidency shall be maintained by the conciliator and parties whenever necessary. Section 75. Section 76 talks about the termination of conciliation proceeding. दिस इज ए, इसका डिस्प्यूट हुआ था बी के साथ. कॉन्सिलेटर पहले इनसे पूछेगा कि इन लोगों को क्या क्या चाहिए सेटलमेंट. फिर इन लोगों का अगर सेटलमेंट हो गया तो नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट था, व्हेन द पार्टी रीचेस एन एग्रीमेंट ऑन ए सेटलमेंट दे मे ड्रॉ अप एंड साइन एन रिटन स्टेटमेंट. सपोज कॉन्सिलेटर ने बोला इन दोनों का सेटलमेंट करवा दिया, तो जो सेटलमेंट ये करवाया दैट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग. जैसे कि आर्बिट्रेशन में था, उसमें आर्बिट्रेटर एक रिवर्ट पास कर रहा था. सेम चीज़ अगर ये सेटलमेंट हो गया तो दैट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग. और सेक्शन 75 उन लोग का जो बात हो रहा है आपस में, दैट विल बी कन्फाइंड टू देम ओनली. वो किसी और को नहीं बताएगा, सीक्रेसी मेंटेन करेगा टिल वेन एवर नेसेसरी. और सेक्शन 76 बताता है कि वो जैसे कि कंसिलेटर ने कंसिल कर दिया, टॉपिक ख़त्म कर दिया, सेटलमेंट करवा दिया, उसके बाद उसको टर्मिनेट कैसे करेगा, इसमें 76 बता रहा है सेक्शन 76 में कैसे होता है. इसके बाद लास्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं फॉर टुडे, डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन. द लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन एग्जिस्ट इन द एक्ट 1940, कंसिलेशन आया 1996 में. फर्स्ट वाला पॉइंट है आर्बिट्रेशन 1940 से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं और कंसिलेशन 1996 में आया इन एग्जिस्टेंस. इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मस्ट कंसिस्ट ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स. जैसे कि 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन कंसिलेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है. कंसिलेशन में जैसे कि मैंने अभी बोला, ए ने एक पार्टी चूज़ किया, बी ने एक पार्टी चूज़ किया, वो दोनों मिलकर उन दोनों का सेटलमेंट करवा सकते हैं. एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. ऑड इवन का ऐसा कुछ चक्कर ही नहीं है. नेक्स्ट, ए डिस्प्यूट मे और मे नॉट एग्जिस्ट फॉर एन एग्जिस्टिंग आर्बिट्रल एग्रीमेंट. नो कंसिलेशन एग्जिस्ट बिफोर द डिस्प्यूट. मतलब आर्बिट्रेशन, जैसे कि ए और बी ने आज एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो लोग डिसाइड कर सकते हैं कि उन लोग का फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होगा. फर्स्ट दे विल गो टू आर्बिट्रेशन, देन अगर उन लोग का सेटलमेंट वहाँ पे नहीं हुआ तो टू द कोर्ट. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कंसिलेशन में. एग्रीमेंट करते वक्त टाइम वहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते कि फर्स्ट हम लोग कंसिलेशन में जाएंगे या ऐसा कुछ करेंगे. उन लोग बाद में जब डिस्प्यूट होता है तब उसके बाद वो लोग डिसाइड कर सकते हैं कि उन लोगों को क्या करना है. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, कंसिलेशन कैन बी यूज एज एन एविडेंस इन एनी cannot be used as an evidence in any arbitral or judicial proceeding. Arbitration can be used as evidence. Conciliation में जो उन लोग का बात हुआ वो मैंने बोला आप लोग को सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं, वो बाहर में नहीं जाएगा. किसी को भी कंसिलेटर नहीं बोलेगा कि उन लोग का बात ये सब हुआ था. लेकिन आर्बिट्रेशन में जो वर्ड पास किया था दैट कैन बी यूज एज एन एविडेंस इन कोर्ट. दिस इज इट. थैंक यू.